each and every word cannot be explained, cannot be elaborated. On the expectation कि आप पढ़ के आए हो, कोई main concepts in this chapter we begin with. We are going to begin with firstly the distinction between important things. One of them is the difference between fixed factors and variable factors. So major factors means basic factors of production which are required. That you know very well. 4 basic all primary factors are there: land, labor, capital, and organizer. Two types of what I was telling. Basic 4 factors are there: land, labor, capital, and organizer. Further, there bifurcations can be there. अब land है तो land के आगे so many things can be said. Building है, residential building है, या factory है, कोई plant है, आगे उसका कई सारे divisions हम कर सकते हैं. But broadly, land is required to start the work. ऐसे ही capital, labor, all these things are required. तो keeping in view कि कौन से फैक्टर्स को चेंज किया जा सकता है और कौन से फैक्टर्स को चेंज नहीं किया जा सकता इन द शॉर्ट पीरियड. फैक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन इज कॉल्ड फिक्स्ड फैक्टर, वन इज कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर. So in the short period, in less period of time, if we are in a position to change some of the factors, for example labor, for example the use of fuel, petroleum, use of electricity, these things can be use of raw material, these things can be increased or decreased, but they can be changed. But on the other side, we cannot change the factory size, we cannot change the number of machines immediately in the short period. These plant equipment, permanent एडजस्टमेंट्स लाइक दिस रूम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, तो आप कहें कि एक दिन में इसको बदल दो, ये खिड़कियों के डिजाइन चेंज कर दो, नहीं हो सकता. इसकी कंस्ट्रक्शन के डिजाइन को चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे बनकर वैसे ही रहेगा. बट इन द लॉन्ग रन कुछ और एडिशन सब्ट्रैक्शंस कैन बी डन. कहीं और फैन का पॉइंट, कहीं और लाइट का, कहीं और कुछ किया जा सकता है. बट इन द शॉर्ट पीरियड नथिंग कैन बी डन. ओके, सो दोज फैक्टर्स which cannot be changed in the short period, they are known as fixed factors. And their examples are factory building, machinery, plant, equipment, permanent adjustments made within the factory premises. Those are called this fixed factors. On the other side, variable factors are those whose quantity can be changed. तो quantity change कौन से हो सकते हैं? Labor का number can be changed, number of quantity of raw material can be changed, quantity of fuel can be changed, whatever can be changed. जो कुछ भी बदल सकते हैं वो सारा that comes under variable factor. उसके बाद आ जाता है हमारा टाइम पीरियड, शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जैसे फैक्टर्स को डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ टाइम. तो ऐसे टाइम को जब डिफाइन करना है, नाउ वी नीड द हेल्प ऑफ फैक्टर्स. तो वी कैन डिफाइन कि शॉर्ट पीरियड मीन्स दैट पीरियड ऑफ टाइम इन विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड फैक्टर्स एंड सम आर वेरिएबल फैक्टर. कुछ को बदला जा सकता है, कुछ को नहीं बदला जा सकता. जैसे अभी राइट नाउ इन द स्कूल की बिल्डिंग को नहीं बदल सकते, बट स्कूल में जो टीचर्स हैं या स्टाफ है उसके नंबर को बदल सकते हैं. वेरिएबल फैक्टर है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बदल सकते हैं, नंबर ऑफ रूम्स इमीडिएटली नहीं बदल सकता. 4 और बच्चे आ रहे हैं तो नंबर चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो कुछ चीजों को बदला जा सकता है, कुछ को नहीं बदला जा सकता. सो जिस टाइम पीरियड में ये कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया जाए, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. On the other side, long period means that time period in which it's possible to change all the factors. All factors become variable factor. Means in the long period, school building can be shifted from one place to another. अब शिफ्ट का मतलब है वो नहीं जो अंबुजा से नहीं बड़ा बिल्डिंग ऐसे हाथ में लेके इधर रख दिया, वो वाला नहीं. उसका मतलब है कि एक जगह से बिल्डिंग को सेल करके किसी दूसरी जगह बिल्डिंग बनाई जा सकती है. एक जगह के बेंचेस को चलो उठा के ले जा ही सकते हैं. जो परमानेंट चीजें उनको भी एक जगह अरेंजमेंट करके उसका सेलिंग का अरेंजमेंट करके दूसरी जगह वर्क कैन बी एस्टैब्लिश किया जा सकता है कुछ ना कुछ. सो व्हेन दिस चेंज इज इट्स पॉसिबल टू ब्रिंग दिस चेंज, दैट इज कॉल्ड वेरिएबिलिटी. वेरिएबल बदलना. तो दैट टाइम पीरियड इज नोन एज लॉन्ग पीरियड. फर्स्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स शुड बी क्लियर. उसके बाद 3 प्रोडक्ट एस्पेक्ट्स आर देयर. वन इज टोटल प्रोडक्ट, वन इज marginal and one is average product. So total product means that production which can take place, या total production of goods and you can delete the word services. यहाँ पर we are talking about physical production, चीजों की production. Services की production का यहाँ पर नहीं है कुछ बनती है. Services word can be deleted. So total production means the total quantity of output of goods which can be produced with the help of given fixed and variable factors. अगर है short period,
एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल वेरिएबल फैक्टर्स अगर पीरियड है लॉन्ग पीरियड, ठीक है, दोनों तरह से बोल सकते हैं. टोटल प्रोडक्शन मीन्स total quantity of output of goods which can be produced in the short period with the help of all available या given variable and fixed factors and in the long run with the help of all available variable factors. जो कुछ हमारे पास है उसकी मदद से क्या बना सकते हैं, जो भी बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्शन. दूसरी आ जाता है हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज इन्वॉल्व्ड. एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर लगाने से क्या चेंज आया, ये डेफिनेशन है विद रिगार्ड टू शॉर्ट पीरियड. मान के चले कि फिक्स्ड फैक्टर्स को नहीं बदल सकते, वेरिएबल फैक्टर को बदलने से क्या चेंज आ सकता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट. जैसे कोई किसी फैक्ट्री में 10 वर्कर्स आर वर्किंग, तो दे आर प्रोड्यूसिंग मान लीजिए 100 चीजें बना रहे हैं. अब 11 वर्कर्स लगा दिए, नाउ दे आर प्रोड्यूसिंग 120 आइटम्स या जो भी प्रोडक्ट बन रहा है. अब वो जो 11th वर्कर लगाया उसके आने से कितना चेंज आया है प्रोडक्शन में, 20 यूनिट्स का, 120 माइनस. तो वो जो वर्कर है दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ विच फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर. फैक्ट्री वही है, मशीनें वही है, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर बदला है. तो वेरिएबल फैक्टर के एडिशन से या चेंज से जो भी चेंज आता है इन टोटल प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट. उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड टर्म इज एवरेज प्रोडक्ट मींस पर यूनिट प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. हर एक आदमी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ या नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर. इतनी प्रोडक्शन 10 लोगों ने बनाई, तो यही है 100. 10 लोगों ने बनाया तो 100 डिवाइडेड बाय 10, ईच पर्सन इज कंट्रीब्यूटिंग इक्वल टू 10 यूनिट्स. 120 units are being made by मान लीजिए 10 workers. Now each one of these 10 workers they are contributing 12 units. Total production को नंबर से डिवाइड करते वेरिएबल फैक्टर के, we get average production. So these three concepts since they are required in the further explanation of various laws, that is why we are using this. Next है हमारा very important जो टॉपिक आता है that is production function. अभी ये रिलेशन अपने आप देखते हैं PPAP एप्लीकेशन. नेक्स्ट इज जो मेन है दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन गिवन फिजिकल इनपुट्स एंड रिजल्टेंट फिजिकल आउटपुट. फिजिकल वर्ड का मतलब है, कैन यू सी दिस ज्योमेट्री बॉक्स, देख सकते हैं सारे, इसको पकड़ा जा सकता है, गिना जा सकता है, चौक को पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, गिन सकते हैं, बेंचेस को देख सकते हैं. मतलब सारी मटेरियलिस्टिक चीजें जो किसी मटेरियल से बनी हुई है, मेटल से बनी हुई है, जिसको भी देखा जा सकता है, विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी सीन, विच कैन बी काउंटेड, मेजर्ड, कुछ भी कर सकते हैं. ऑल दोज थिंग्स आर नोन एज फिजिकल थिंग्स. ठीक. ऑन दी अदर साइड जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो अब ये कोई चीज का लेना देना तो नहीं हो रहा. फिजिकली तो आई एम नॉट गिविंग यू एनीथिंग, मैं कोई भी फिजिकली आपको कुछ नहीं मिल रहा, बट अंडरस्टैंडिंग बेसिस के ऊपर आप समझ रहे हैं या मैं समझा रही हूँ. मतलब दोज थिंग्स कैन बी फेल्ट, दे कैन बी अंडरस्टूड और दे कैन बी फेल्ट, बट फिजिकली दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड. तो ऐसी चीजों को कहा जाता है सर्विसेज, और जो फिजिकल होती है वो कहलाती है मटेरियलिस्टिक चीजें, या उसको फिजिकल एडजेक्टिव इसमें. तो यहाँ पर द प्रोडक्शन फंक्शन विच वी आर स्टडीइंग दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल आउटपुट. कि भी एक गिवन क्वांटिटी ऑफ फिजिकल इनपुट्स को यूज करके इतना सीमेंट, इतना रेत, इतनी ब्रिक्स को यूज करके कितनी दीवार बनाई जा सकती है, देखी जा सकती है. तो विद द हेल्प ऑफ गिवन फिजिकल इनपुट्स whatever output can be produced, that relationship is known as functional relationship या physical relationship, that is known as production function. अब वो जो production function है there can be of two types. One is आगे दिया हुआ है, one type is variable proportion type. यहाँ पे आपने ध्यान से देखना, अगर पहले it was done during online class, नहीं किया तो आप कर सकते हो. One is variable proportion type and the other one is constant proportion type. Variable. This table is not given in the book, that is why I am saying you can note out this on the book itself. Variable, proportion type. Second is constant proportion type. K stands for capital, or can write, no problem. We will help you to practice it. K stands for capital, L stands for labor. K का मतलब फाइट, इंग्लिश वाला नहीं लेना, इकोनॉमिक्स में K stands for capital. अब now let us take example. We are having one machine.
इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। फिक्स्ड फैक्टर है मशीन, एक बार जो लगा दी सेम की सेम रहेगी, उसको चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए वन मशीन इज देयर इन द फैक्ट्री, वन लेबर इज वर्किंग, सेकेंड टाइम पीरियड है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, देन मशीन इज सेम, वन मशीन इज वर्किंग, नाउ द ओनर जो भी बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर है, नाउ ही इज एम्प्लॉइंग टू लेबर्स, दो लोगों को लगा है, टू, अगेन मशीन इज वन, he is taking help of three laborers, one machine 4 laborers, one machine 5 laborers. Okay, so K means machine, capital good, that is a fixed factor, labor is a variable factor. Now what is happening in the short period, since we say कि fixed factor cannot be changed, इसलिए मशीन को चेंज नहीं किया जा सकता, variable factor can be changed, आज एक को लगाया काम के, कल को दो को लगा सकते हैं, 4 को 10 को जितना रिक्वायर्ड लगा सकते हैं। अब आप देखो हर बार व्हाट इज हैपनिंग इन योर प्रपोर्शन, 1 to 1 का प्रपोर्शन, फिर 1 to 2 प्रपोर्शन, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5 and so on. Every time proportion between fixed factor and variable factor is getting changed, is it or not? हर बार ये proportion is changing, तो जब proportion change हो रहा है तो change के लिए term is used variable proportion type, कि भाई अगर this type of things are followed तो हमारी जो प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन फंक्शन होगा, दैट विल बी नोन एज वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। हर बार प्रोपोर्शन मींस रेशियो चेंज हो रही है बिटवीन व्हाट, बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल, एंड दिस इज ए पर्टिकुलर फीचर ऑफ शॉर्ट पीरियड होगी, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में मशीन कैन नॉट बी चेंज। अब आ जाए दूसरी साइड पे, नाउ कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप, दिस इज ए फिनोमेना ऑफ द लॉन्ग पीरियड। नाउ मशीन इज वन, मान लीजिए उसके साथ में the entrepreneur is taking help of 2 laborers, दो लोगों को लगाते हैं। अब now 2, 4, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10. Now he has decided in the beginning, किसने डिसाइड करना है? जो ओनर है, जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर, जो मालिक है, डिसाइड करेगा ना, लोगों ने भी डिसाइड करना है। एंटरप्रेन्योर हैज डिसाइडेड कि वो एक मशीन और 2 लेबर को लगा के अपना काम चलाना चाहते हैं, तो 1 मशीन 2 लेबर्स आ गए। अच्छा, जब जितना काम हो गया, नाउ ही वांट्स टू एक्सपेंड, और अपने काम को ऊपर के लेवल पे लेके जाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, और प्रोडक्शन करना चाहता है। नाउ ही इज टेकिंग हेल्प ऑफ 2 मशीन 4 लेबर्स। अब आप ध्यान से सोच के बताओ, एक मशीन और 2 वर्कर्स ज्यादा काम करेंगे या 2 मशीन और 4 वर्कर्स ज्यादा काम करेंगे? ऑब्वियसली स्केल हैज रेज्ड, स्केल बढ़ा है, स्केल मतलब लेवल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, लेवल चेंज हुआ है, मतलब 2 मशीनें और 4 वर्कर्स हैं तो पहले से ज्यादा ही प्रोडक्शन करेंगे। ऐसे ही 3 मशीन्स हैं और 6 लेबर्स हैं, ये इनका जो भी प्रोड्यूस होगा, जो भी प्रोडक्शन होगा, वो इस लेवल से ज्यादा होगा, इस लेवल से भी ज्यादा होगा। ऐसे ही अगर 4 मशीन्स हैं और 8 वर्कर्स हैं, सो हर बार जो नया प्रोपोर्शन बन रहा है वो पहले की बजाय ज्यादा हमें स्केल हमारा प्रोडक्शन का बढ़ाएगा, क्योंकि हम ज्यादा इनको एक्सपेंड कर रहे हैं। But if you see carefully, what is the proportion between these two? 1 to 2 का proportion चल रहा है, ये देखो 1 और 2, ये भी डिवाइड करें 1 और 2, 1 और 2, मतलब proportion is to be decided in the beginning। जितना भी अगले ने सोचना है, 1 to 2 का सोचना है, 2 to 6 का सोचना है, 4 to 8, 7 का सोचना है, जो भी सोचना है वो ओनर की सिर्फ करती है, ठीक। जो भी proportion equal in the beginning has been decided, now that is being raised at a higher level। proportion वही है, but level is being increased। अब यहाँ पे आप देखो कंपैरेटिवली, यहाँ लेवल नहीं बढ़ रही, यहाँ सिर्फ उनकी आपस की रेशियो चेंज हो रही है। एक रूम में आप 32, अमनदीप को भी इंक्लूड कर ले, 33 स्टूडेंट्स आर सिटिंग हियर, ठीक है, 1 टीचर 33 बच्चे आते हैं, और 10 लोगों को बिठा दे, 1 टीचर 43, और 10 लोगों को बिठा दे, 1 टीचर 50 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट, कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही है, सिर्फ रेशियो चेंज होती है। बट अगर एक टीचर 10 बच्चे, 2 टीचर 20 बच्चे, 3 टीचर 30 बच्चे, फिर स्केल बढ़ेगा। I hope you are getting my point, but I am trying to say, okay? So this constant proportion type production function is a feature of which time period? ये कब कर सकते हैं? लॉन्ग पीरियड में कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में मशीन कैन बी चेंज, यहाँ नहीं कर सकते थे, इसलिए ये शॉर्ट पीरियड है। अब आपको ये सारी यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल द फीचर्स साइड बाय साइड कि कहाँ पर क्या किया जा सकता है, ठीक। तो ऐसा जो रिलेशन बनता है, if production takes place in this manner, then it is called as constant proportion type। It is a peculiar होता है, वेरी स्पेसिफिक, खास किसी चीज का फीचर होना है। तो दिस इज ए peculiar फीचर ऑफ विच टाइम पीरियड? लॉन्ग टाइम पीरियड।
ठीक, ये आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए. नाउ इफ वी शो दिस विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, तो व्हाट टाइप ऑफ डायग्राम वी गेट विच इज गिवन इन द बुक. यहाँ पे ले लेते हैं लेबर, इधर है कैपिटल. मशीन एक ही है, ये 1, लेबर हर बार चेंज होगी है 1 2 3 एंड सो ऑन. ये 1 1 to 1 1 to 2 1 to 3 एंड सो ऑन. मतलब यही लाइन आनी चाहिए. इस तरह की शेप है प्रोडक्शन. On the other side, if we draw this, here we take labor, here capital. Capital का है 1 2 3 4, labor का है 2 4 6 8. Every time 1 to 2 2 to 4 and so on. Constant proportion है, straight line. क्योंकि एक fixed proportion is we are moving with a fixed proportion. Now you see, is there any difference between the shape of this line and this line? फर्क है दोनों में, ठीक है. तो इसका मतलब हो गया कि अगर आपको इफ दिस लाइन इज गिवन, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि दिस लाइन शोज अस द लेबर प्रोपोर्शन बाय प्रोडक्शन फंक्शन, दिस लाइन शोज अस कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ठीक, नेक्स्ट पेज के ऊपर ये डिफरेंस दिया हुआ है.